The class students. Now today I am here with very interesting topic. Before we start, I'll be asking you a few questions. Yes? Do you believe in fortune tellers or future predictions? Yes? You do believe, isn't it? As we move on forward in our life and when we are making major decisions for our life, we do with astrologers or those who do predictions, or we visit palmists. We show our hand and reading of the lines, and according to that we come to our decisions. Yes, this is the normal pattern we do follow in our life. But somehow these things may come true or may not come true is always the question, and we have to wait for the time to happen for the situations, isn't it? So in this chapter also we will come to know about the king. At the time of his birth, there was a prediction made by the chief astrologer, and then what happened we'll come to know, and what he decided to do, and at the end of the chapter we'll conclude that how ironic the situation was. What was predicted, what was committed, what happened, and finally what ended in the end. Second, we come to know, as we notice, it's in the beginning of the chapter written, the wild general behavior of man towards wild animals. Yes, we are familiar with domestic animals, yes, pet animals. But what about wild animals? We fear facing wild animals. And as we see wild animals, it's general behavior of human being that we happen to attack and kill wild animals. So, we'll be knowing all these things by reading this chapter, and let's start with the chapter. We come to know about the main character of the chapter, who is the Maharaja of Pratibandhapura. He is the hero of the story, and he is given many names. Yes, in the beginning of the chapter, first paragraph, we come to know about different names given to Maharaja. He may be identified as His Highness Jabidar General, Khedidar Major, Satabhadra Samhari, Maharaja Viraj, Vishwa Bhuvan Samrat, Sir Jilani Jang Bahadur, MAD, ACTC, or CRCK. Now all these are the different names or titles given to Maharaja. But the writer Kalki is saying to us that the shortest name and very popular name given to this Maharaja is the title king. Addressing to the reader, writer is saying that he had come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा? इतनी सारी उपाधियां मिलने के बाद भी उनको टाइगर किंग क्यों कहा गया? वो कहते हैं कि उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो ऐसा एक्ट करे, प्रिटेंडिंग, अभिनय करे और फिर एंड में जाकर के आपको सारी बात बताए. ऐसा कुछ भी नहीं है. और वो ये कहते हैं कि कोई धमकी उनको इस बात से रोक नहीं सकती कि वो ये रीडर को ये बताएं कि महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम को टाइगर किंग का टाइटल क्यों और कैसे मिला. He is very much confident by writing this line. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat for my story. Now by writing this, he is conveying to the reader also somewhat Second World War में Stuka bomber aircraft काम में लिया गया था. उस एयरक्राफ्ट के बारे में बताते हुए अपना डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं राइटर, और वो कह रहे हैं कि ये Stuka bomber भी अगर थ्रेटनिंग के तौर पर आता है वो उससे भी नहीं घबराने वाले. And to start, he discloses the matter of very good importance, great importance about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience the natural desire
to meet a man of his indomitable courage face to face. Now here the writer is explaining कि जो कोई भी एक बार अगर टाइगर किंग से मिल लेगा तो वो क्या अनुभव करेगा, उसमें ये एक अपने आप ही इच्छा जागृत होगी कि वो वास्तविकता में फेस टू फेस यानी प्रैक्टिकली अपने सामने आमने सामने टाइगर किंग से मिलना चाहेंगे। और क्यों मिलना चाहेंगे? क्योंकि टाइगर किंग में क्या है? इनडोमिटेबल करेज है, उनमें इतनी हिम्मत, इतना साहस है जो कि कभी अनबीटेबल है, उसको बीट नहीं किया जा सकता, बहुत ज्यादा करेजियस है। हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब जानेंगे। फ्रॉम बर्थ, एट द टाइम ऑफ द बर्थ ही उनके लिए प्रेडिक्शन किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है कि वो हीरो ऑफ हीरोज कहलाएंगे, चैंपियन ऑफ चैंपियंस कहलाएंगे। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। अब कार्तिक हमें यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई रीडर ये एक्सपीरियंस करता है और ये चाहता है कि वो उन्हें टाइगर किंग से आमने सामने मिलना चाहते हैं तो वो इच्छा उनकी पूरी नहीं हो सकती, उसका कोई भी मौका नहीं है। ऐसा मौका इसलिए नहीं है क्योंकि अब टाइगर किंग जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. But there is no chance of its fulfillment. As Bharata said to Rama about Dashrath, the king tiger has reached that final abode of all living creatures. Final abode of all living creatures. Now here the writer is conveying कि जिस तरह से भरत ने राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार राम को दिया, उसी तरह से टाइगर किंग जो है वो अपने अंतिम स्थान पर पहुंच चुका है जहां पर कि सारे लिविंग क्रीचर्स जाते हैं। So the final destination for all living creatures is heaven after death. So here, in other words, the writer is explaining that the Tiger King is dead. Now the death is not that much important, but important is the manner of his death. टाइगर किंग की मृत्यु कैसे हुई ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो ये कहते हैं कि ये सारी बात क्या करेंगे वो, इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, यानी जब हम इसके 5th सेक्शन तक पढ़ते पढ़ते पहुंचेंगे तभी समझेंगे कि राजा की मृत्यु का तरीका जो है वो कैसा था, कैसा प्रेडिक्ट किया गया और क्या हुआ। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. Now here this is somewhat called humor. Yes, अब prediction कोई भी करेगा, पहले ही रीडर ने हमें बता दिया कि जो जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है राइटर हमें कि सबसे फैंटास्टिक तरीका एस्पेक्ट क्या है स्टोरी का कि ऑफ हिज डिमाइस वाज दैट, यानी टाइगर किंग की मृत्यु का सबसे फैंटास्टिक एस्पेक्ट क्या था कि जैसे ही उनका जन्म हुआ, यानी महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम का जब जन्म हुआ, उनके जन्म के साथ ही एस्ट्रोलॉजर हम उन्हें कहते हैं जो भविष्य के बारे में आकलन करके हमें कुछ बातें बताते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी कर दी होती है, पहले से कह दिया होता है कि एक दिन ये टाइगर किंग वास्तविकता में मृत्यु को प्राप्त होगा। Yes, I hope you can understand till now. Continuing with the lecture, we'll read about what predictions were made by the astrologer or the chief astrologer.
heroes, champion of champions. वो कहते हैं कि ये बच्चा जो है बड़ा होकर के क्या बनेगा, योद्धाओं का भी योद्धा बनेगा, हीरोज का भी हीरो बनेगा और चैंपियंस का भी चैंपियन बनेगा। यानी कि उसमें बहुत ज्यादा काबिलियत होगी, बहुत ज्यादा साहसी होगा, बहादुर होगा, मल्टी टैलेंटेड होगा और हर फील्ड में एक्सेल करेगा, आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात, they bit their lips and swallowed hard। उन्होंने क्या किया, अपने लिप्स को टाइट बंद कर लिया और ऐसे बिहेव किया कि मानो वो शब्दों को अपने अंदर बाहर आने से रोक रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि वो आगे कुछ ना बोले। When compelled to continue, जब उनको फोर्स किया गया, उन पर दबाव डाला गया कि वो आगे बताएं कि क्या बात है, तो एस्ट्रोलॉजर अपनी बात कहते हैं, This is a secret which should not be revealed at all। ये वो रहस्य है जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए, लेकिन हम पर दबाव डाला जा रहा है इसलिए हम कहेंगे। और वो क्या कहते हैं, The child born under this star will one day have to meet its death। यानी यह बच्चा जो कि इस सितारे के अंतर्गत पैदा हुआ है वो एक दिन अपनी मृत्यु को जरूर पाएगा। At this moment, now something we earlier at the beginning of the lesson I said that some supernatural element is also there. So the reader is also surprised to read now further that at that moment a great miracle took place। उस समय जबकि एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा कि ये बच्चा जिसने जन्म लिया है इस सितारे के अंतर्गत, अब ये सितारा यहाँ पर वो है जो कि हम ज़ोडिक साइंस को जानते हैं और डेली न्यूज़पेपर में भी हमारे प्रेडिक्शंस पढ़ते रहते हैं, और जो हमारा बर्थ का टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा बर्थ साइन भी डिसाइड होता है। और वो स्टार जो इसका है किंग का, वो देख करके वो क्या कह रहे हैं कि ये बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड होगा, लेकिन एक दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब ये घोषणा एस्ट्रोलॉजर करते हैं तो उसी समय एक जादू होता है। मिरेकल मींस मैजिक took place। An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jung Bahadur। अब ये जो न्यूली बॉर्न प्रिंस है, रॉयल फैमिली का बॉर्न बेबी है, इसका नाम हमें पता चलता है, उसका नाम है जिलानी जंग बहादुर। अब ये जादू सा हो जाता है कि वो 10 दिन का बच्चा जिसको भी पैदा हुए दुनिया में आए थे मात्र 10 दिन हुए हैं, वो बच्चा अपने होठ हिला करके स्पष्ट शब्दों में कुछ कह रहा है। और वो क्या कहता है, O wise prophets, O wise prophets। Everyone stood transfixed with stupefaction। They looked wildly at each other and blinked। So surprising, ये जादू जैसी बात हो गई कि ये 10 दिन का बच्चा इतना स्पष्ट तरीके से बोल रहा है, तो सभी आश्चर्य में स्तब्ध हो जाते हैं। एक वो उनकी बॉडी मूव नहीं हो पाती, वो मोशनलेस हो जाती हैं और फटी आंखों से एक दूसरे को देखते रहते हैं और अपनी आईज ब्लिंक करते हैं। दैट मींस ऑल दे वर इन एक्सट्रीम वंडर कि ये क्या हुआ, ये आवाज कहाँ से आई और ये कौन बोला। और फिर वो बच्चा दोबारा से बोलता है, ओ वाइज prophets, it was I who spoke। वो बच्चा कहता है कि ये मैं था जो कि बोला। जब वो बच्चा, कौन है ना बच्चा, old 10 days old जिलानी जंग बहादुर, न्यूली बॉर्न प्रिंस, वो क्या कह रहा है कि ओ वाइस प्रॉफिट्स, इट वाज आई हु स्पोक, ये मैं हूं जो बोला था। दिस टाइम देयर वाज नो ग्राउंड्स ऑफ डाउट। अब इस समय संदेह का कोई भी
कारण नहीं था। सबको यकीन हो गया कि ये इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the words so clearly, सभी ये मान जाते हैं कि ये बच्चा जिसने कि अभी जन्म लिए हुए मात्र 10 दिन हुए हैं, उसी बच्चे ने इतना स्पष्ट तरीके से इन शब्दों को कहा है। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है, जो कि अपनी बात कह रहे हैं, भविष्यवाणियां बच्चे के बारे में बता रहे हैं, उसका बर्थ टाइम के साथ स्टार प्रेडिक्ट करके वो अपना चश्मा उतारते हैं और बच्चे की तरफ गौर से देखते हैं, जैसे किसी इरादे से देख रहे हो या कुछ अध्ययन करने के हिसाब से देख रहे हो। और फिर वो क्या कहते हैं, प्लीज डू रीड। All those who are born will one day have to die. Again he is repeating his words and he is saying all those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. अब वो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो क्या करते हैं, अपना चश्मा उतारते हैं और बच्चे की तरफ गौर से देखते हैं। अब वो बच्चा क्या कह रहा है, all those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in this little squeaky voice. अब वो infant boy जो है, baby है infant, वो अपनी आवाज में बोलता है और देखिए कितना इंटेलिजेंट रिमार्क दे रहा है। और वो ये कहता है कि हम जानते हैं कि हर कोई जो जन्म लेगा वो एक दिन मृत्यु पाएगा। हमें आपके इस अनुमान की या इस प्रेडिक्शन की आवश्यकता नहीं है। आपने अगर ऐसा कहा है तो उसमें कुछ न कुछ और अर्थ भी होगा, इसीलिए आप क्या करें, मृत्यु का तरीका बताएं, मैनर ऑफ दैट डेथ उनको बताएं। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो इतना ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि वो अपनी फिंगर अपने नोज पर रख लेता है और फिर वो सोचता है। तो क्या सोच रहा है, a baby barely 10 days old opens its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions. Incredible. Incredible means here unbelievable. So he's thinking that a baby barely 10 days old and he's speaking so clearly and raising intelligent questions also. This is something unbelievable. One cannot believe these factors that a 10 days old boy can speak so clearly and raise intelligent questions. Rather like the bulletins issued by the War Office than facts. Now here the writer is saying to us कि जब वॉर हो रहे होते हैं तब बुलेटिन बोर्ड पर किस तरह की न्यूज आ रही होती है ये हमें नहीं पता होता है, वो भी अनबिलीवेबल होती हैं। तो इस तरह से इस बेबी के किए गए, इन्फेंट के किए गए रिमार्क्स भी अनबिलीवेबल हैं। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. अब चीफ एस्ट्रोलॉजर अपनी फिंगर को नाक पर से हटाते हैं और अपनी आईज को प्रिंस पर फिक्स कर देते हैं, कुछ रीड करके अंडरस्टैंड करने के लिए। और फिर वो स्टेटमेंट देते हैं, द प्रिंस वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल।
यानी इस राजकुमार का जन्म कब हुआ? आर ऑफ द बुल में हुआ। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, therefore death comes from the tiger, he explained. वो कह रहे हैं कि the bull and the tiger are enemies, और प्रिंस का जन्म कब हुआ? आर ऑफ द बुल में हुआ। बुल ज़ोडिक साइन टॉरस का सिंबल है। सो उन्होंने अपनी कैलकुलेशन से प्रेडिक्ट किया, अपनी नॉलेज से प्रेडिक्ट किया कि जो स्टार जिसके अंडर प्रिंस ये इन्फेंट बॉर्न हुआ है, बेबी बॉर्न हुआ है, वो आर कौन सा था? आर ऑफ द बुल था। इसलिए प्रिंस का ज़ोडिक साइन हो गया टॉरस। और चूंकि बुल और टाइगर दोनों एनिमीज हैं, दोनों शत्रु हैं, इसीलिए इस न्यूली बॉर्न प्रिंस का डेथ का कारण कौन बनेगा? टाइगर बनेगा। इस तरह से उन्होंने इस बात को समझाया। Continuing, you may think that Crown Prince Jang Bahadur was thrown into a quack when he heard the word tiger. So what do you think? That we can think that the Prince Jang Bahadur, he would have felt fear. Yes, students. यहाँ पर हमें ये लग रहा होगा कि उसको क्या लगा होगा? 10 days old बेबी को डर लगा होगा टाइगर का नाम सुनते, क्योंकि मेरी डेथ का कारण टाइगर हो जाएगा तो कितना बुरा होगा और किस तरह की मृत्यु उसको मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे कि वो टाइगर डरता नहीं है, टाइगर से डरता नहीं है। और फिर वो क्या कहते हैं? राइटर हमें कह रहे हैं दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन। हकीकत में ऐसा हुआ ही नहीं, वो डरा ही नहीं। और उन्होंने क्या किया? उस प्रिंस जंग बहादुर ने अपने दांतों को गुर्राते हुए, दांतों अपने मुंह से गुर्राते हुए आवाज निकाली, डीप ग्राउल, एंड टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और उसके होठों से डराने वाले शब्द निकले। और वो शब्द क्या थे? लेट टाइगर्स बिवेयर। वो कहता है कि ठीक है, टाइगर्स को सावधान कर दिया जाए, उन्हें चेता दिया जाए कि अब उनकी मृत्यु निकट है। Now the ending with this section, I'll conclude today's lecture. Now this account is only a rumor rife in Pratipampuram. अब ये rumor यानी इस तरह की बातें जो कि सुनने में सच्ची भी लगती है और यकीन करने में नहीं आती है, वो वाइड स्प्रेड हो गई, वो बुरी तरह से फैल गई बातें लोगों के बीच में प्रतिपंपुरम में। But with hindsight we may conclude it was based on some truth. लेकिन हम तथ्यों को पढ़ते, यानी जो बातें हमें पढ़ने में आई, उनको जानकर के ये समझ सकते हैं कि ये सारी बातें कुछ न कुछ सच्चाई पर जरूर टिकी होंगी। So now for the day I'm ending this lecture. We have read and understood the first section of this chapter. This chapter consists of 4 more sections and we'll continue with that. Thank you all.